اب 3 دن منہ کالا کرنے کے بعد اس گھر میں آ رہی ہو؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم تمہیں اس گھر میں رکھ لیں گے؟ چچا کی زبان آگ اگل رہی تھی جبکہ میں ان کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ خدا کے لیے چچا، میری بات کا یقین کریں، میں 3 دن سے بے ہوش پڑی تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ آج ہوش آیا تو دوڑی دوڑی چلی آئی۔ ان کے پیچھے ہی چچی کھڑی تھی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرنے میں سب سے آگے تھی۔ اچھا، 3 دن تک تم کسی غیر کے گھر رہی، اس نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ ہم تو مان ہی نہیں سکتے۔ تمہارے پاس اپنی صفائی، اپنی پاکیزگی کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ سارے رشتہ داروں میں ہم بدنام ہو جائیں۔ چچی نے ایک لمحہ نہیں لگایا مجھے ذلیل کرنے میں۔ میں سر جھکا کر آنسو بہاتی رہی جبکہ چچا کہنے لگے، نوکری کرنے کے بہانے تم یہی سب کچھ کرنا چاہتی ہو، اس لیے ہمارے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ چاہو تو اپنی ماں کے گاؤں چلی جاؤ، تمہارا ماموں بھی تو وہیں رہتا ہے۔ ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو۔ انہوں نے سب کچھ ختم کر کے سارے رشتے توڑ لیے۔ چچا تو اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں اب بھی کھڑی تھی کہ شاید وہ مجھے ایک بار اندر بلا لیں، مجھے معاف کر دیں۔ جب چچی نے دیکھا کہ میں ڈھیٹ بن کر اسی دہلیز پر جمی کھڑی ہوں، انہوں نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پھر واپس کھینچ لیا۔ میں جانتی تھی کہ ان لوگوں کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، اگر میں اسے اپنی گواہی دینے کے لیے ساتھ لے آتی تو شاید یہ لوگ میری بات پہ یقین کر لیتے۔ میں نے اچھی طرح سے چادر اوڑھی اور وہاں پر جانے لگی جہاں سے واپس آئی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرے پہنچنے تک وہاں کا نقشہ ہی بدل گیا ہوگا۔ میں اس کھنڈر نما گھر میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک ہی میرے کانوں میں ایک بھیانک اور گرجدار آواز سنائی دی، اے لڑکی، چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میں نے نظر سامنے کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو ایک خوفناک چہرے والا وجود کھڑا مجھے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ بھاگنے کی کوشش میں میرے قدم لڑکھڑائے اور میں وہیں ایک پتھر سے ٹکرا کر گری۔ سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرا نام نیلم ہے، میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ شروع سے ہی میں نے بہت غم برداشت کیے۔ سب سے پہلے تو اپنی ماں کو کھونے کا غم میری ننھی جان نے جھیلا تھا، پھر میں نے ابا جنہوں نے اماں کی موت کے صرف 2 مہینے بعد ایک شادی شدہ بچوں والی عورت سے دوسری شادی کر لی۔ اب وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے تھے، جبکہ ان کی دوسری بیوی نے میرا وجود گوارا نہیں کیا، اس لیے انہوں نے مجھے چچا کے گھر پر چھوڑ دیا، یہ کہہ کے کہ وہ ہر مہینے میرا خرچہ بھجواتے رہیں گے۔ لیکن جب میں 10 سال کی ہو گئی تو انہوں نے خرچہ بھجوانا چھوڑ دیا۔ یوں چچا اور چچی کا رویہ میرے ساتھ انتہائی برا ہو گیا۔ وہ کسی صورت مجھے اپنے گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ میٹرک تک تعلیم کے بعد میں نے پرائیویٹ ہی انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ خرچے کے نام پر چچا چچی مجھے 1 روپیہ تک نہ دیتے تھے۔ میں اپنی ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی۔ نہ ہی کبھی ابا نے پلٹ کر میرے بارے میں چچا سے کوئی سوال جواب کیا، بلکہ کئی سال ہو گئے تھے ابا نے ان سے رابطہ ہی ختم کر لیا۔ میرا وجود بالکل فالتو اور بوجھ کی صورت اس گھر میں موجود تھا۔ ایسے میں چچی آئے دن مجھے گھر سے نکالنے کی ترکیب سوچتی رہتی۔ ان کے اپنے بھی 4 بچے تھے جنہیں وہ بڑے لاڈ پیار سے پال کر جوان کر رہی تھی، جبکہ مجھے تو پیٹ بھر کر روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کی بیٹی زویا میری ہی ہم عمر تھی۔ میں اسی کی اترن پہن کر اپنے تن کو ڈھانپنے کی کوشش کرتی۔ پھر جیسے ہی میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی، میں چچا کی منتیں کرنے لگی کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ صرف اس لیے سوچتی تھی کہ میرے خرچے کے لیے پیسے مل جایا کریں، کیونکہ پڑوس میں میری ایک سہیلی نور رہتی تھی، وہ بھی ایک فیکٹری میں نوکری کرتی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ کب تک ان پر بوجھ بنی رہو گی؟ ہاتھ میں تمہارے پیسے آئیں گے تو لوگ بھی تمہاری عزت کرنے لگیں گے، اس لیے میرے ساتھ فیکٹری میں لگ جاؤ، ہر مہینے اچھی خاصی تنخواہ ملے گی، صبح جاؤ گی شام کو آؤ گی، گھر کی روز روز کی لڑائیوں سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے چچا سے اجازت مانگی۔ چچا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھے کسی فیکٹری میں کام کرنے نہیں دیں گے،
لیکن جب چچی نے یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگی، ارے اچھا ہے نا، کام کرے گی، چند پیسے کمائے گی تو گھر میں کام آئیں گے، کل کو اس کی شادی کرنی ہے تو کہاں سے لائیں گے اس کی شادی کے لیے پیسے؟ اس کے باپ نے تو پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ فیکٹری میں کام کر کے میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہوں۔ یوں انہوں نے مجھے اجازت تو دے دی، مگر پھر ہر مہینے چچی جیسے ہی تنخواہ کا دن آتا میرے ہاتھ سے وہ پیسے چھین لیتی۔ مجھے خرچے کے نام پر 1 روپیہ نہیں ملتا۔ اب میری زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ ایک تو پورا مہینہ میں محنت کرتی، دوسری طرف میری اپنی ضرورتیں بھی پوری نہ ہوتی۔ ایک دن میں دن رات آنسو بہاتی رہی۔ نور بھی مجھے حوصلہ دیتی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتی کہ میں نے ہی تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ فیکٹری میں کام کرو، اب تو تمہارے ساتھ اور بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم پر میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ میں بس اللہ کے سامنے آنسو بہا سکتی تھی، انسانوں کے سامنے نہیں۔ پھر میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے مجھے زندہ درگور کر لیا۔ میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی اور مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس رات میں فیکٹری سے کام کر کے آ رہی تھی۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ اوپر سے آدھے راستے میں اچانک ہی بس خراب ہو گئی۔ ساری لڑکیاں پریشان تھیں، ویسے بھی آدھی رات کو اوور ٹائم کی وجہ سے کم لڑکیاں رکتی تھیں۔ بس ڈرائیور کہنے لگا کہ آدھا سفر تو ہو ہی گیا ہے، آپ لوگ اب اپنے اپنے رکشے کروا کر گھر چلی جائیں کیونکہ گاڑی مزید سفر نہیں کر سکتی۔ لگتا ہے کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہے۔ اب میں شدید پریشان تھی اور اکیلی بھی۔ تھوڑی دیر تک رکشے کا انتظار کیا۔ میرے پاس تو کرائے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ سوچ رہی تھی کہ رکشے کو گھر لے جاؤں گی اور چچا سے پیسے لے کر رکشے والے کو دے دوں گی، لیکن جب انتظار کے باوجود کوئی رکشہ نہیں آیا تو میں نے پیدل ہی سفر کرنے کا سوچا۔ حالانکہ مجھے راستوں کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، لیکن بیچ سنسان سڑک پر اچانک کچھ آوارہ لڑکے میرا پیچھا کرنے لگے۔ وہ مجھ پر فکرے کس رہے تھے تو میری لرزتی چال اور کانپتا جسم دیکھ کر سمجھ گئے کہ میں کس قدر ڈری ہوئی ہوں۔ اچانک انہوں نے میرے پیچھے بھاگنا شروع کیا تو میں بھی چیخیں مارتی جدھر کو منہ اٹھا ادھر کو بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی کہ میں ایک انجان جگہ پر چلی آئی تھی۔ یہاں پر کسی بھی گھر یا کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ عجیب ویرانی اور سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا، اوپر سے شدید دہشت زدہ۔ میں چپ ہو گئی جب میں نے درختوں کے پیچھے ایک پرانے قبرستان کو دیکھا۔ میں جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی کوشش میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ کچھ بھی راستوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اوپر سے رات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے سب گھر والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، یہی سوچ کر میں پریشان تھی۔ تبھی اچانک جھاڑیوں کے پیچھے مجھے سرسراہٹ سنائی دی۔ میرے دل میں خدشہ جاگا، کہیں یہ وہی آوارہ لڑکے تو نہیں ہیں؟ میں نے ایک بار پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی بھاگتے بھاگتے میرا سانس بری طرح سے پھول گیا۔ تھک ہار کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پاؤں میں شدید چبھن کا احساس ہوا، جیسے کسی چیز نے کاٹ لیا ہو۔ یہی سوچ کر میں خوفزدہ ہو کر اٹھی کہ یہاں پر کہیں کوئی سانپ وغیرہ نہ ہو۔ پھر سے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک سفید رنگ کی مسجد مجھے نظر آئی۔ یہ مسجد بڑی خوبصورت تھی، جیسے اسے بہت محنت اور محبت سے تعمیر کیا گیا ہو۔ میں فوراً ہی اس کے اندر چلی آئی۔ مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ بالکل خالی پڑی تھی۔ میں بھی مسجد کے سفید ٹھنڈے فرش پر سر ٹکائے اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ وہ میری عزت کی حفاظت کرے۔ روتے روتے نہ جانے میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو کسی نے دھیرے سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ سامنے خوبصورت سفید کپڑے پہنے نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی نئی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس کے لیے کوئی عجوبہ ہوں۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز مجھے عام انسانوں سے بہت مختلف لگی تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہو کر بیٹھی، گھبرا کر اسی سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور میں یہاں کیسے آئی؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ مسجد میری ہے، میں روزانہ یہاں عبادت کرنے آتا ہوں، لیکن پہلی بار کسی پری کو یہاں روتے دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، گھبرا کر کہنے لگی،
मैं कोई परी नहीं बल्कि लड़की हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, उन्हीं से इज्जत बचाने की खातिर इस मस्जिद में आकर पनाह ली, क्योंकि ये खुदा का घर है। मेरी बात सुनकर उसने सर हिलाया और कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि यह खुदा का घर है, यहाँ पर तुम्हें आँच भी नहीं आएगी। मैं उसकी बात पर फ़ौरन खड़ी हो गई और कहने लगी कि मुझे अब घर जाना होगा, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन अचानक ही फिर से मैं बेबसी होकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं अब अपने पाँव को दहशतज़दा नज़रों से देख रही थी। वो पूरा नीला पड़ चुका था। उसने परेशानी से मेरे पाँव को देखा और कहने लगा, लगता है तुम्हें जहरीले सांप ने काट लिया है, उसके असर से तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक नहीं। फिर सुनकर मैं हैरान रह गई और खौफजदा भी कि कहीं मैं माजूर तो नहीं हो गई। यही सोचकर मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे यूँ रोता हुआ वो दिलचस्पी से देख रहा था। फिर कहने लगा, घबराओ मत, तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका इलाज मेरे पास है। इस जंगल में मौजूद एक जड़ी बूटी जिसे पीस कर लगाने से तुम्हारे पाँव से ये जहरीला असर दूर हो जाएगा। एक तरफ तो मेरा पाँव ज़ख्मी था, दूसरी तरफ मुझे घर जाने की भी परेशानी थी। मैं उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, किसी तरह मुझे घर पहुंचा दो। तो वो कहने लगा, तुम्हारा चलना नामुमकिन है, क्योंकि पाँव की नसें बिल्कुल दब चुकी हैं। जब तक ये ठीक नहीं होगा तुम कैसे चलोगी। उसका लहजा बड़ा खूबसूरत था। मैं वहीं खामोश हो गई। फिर उसी रात वो खाना लेकर आया तो मैं हैरान रह गई। आपका घर यहीं पर है? मैं पूछे बिना न रह सकी। ये सुनकर वो अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ, यूँ समझ लो कि मैं यहीं करीब में रहता हूँ। अब मैं उसी मस्जिद में रहने पर मजबूर थी। कम से कम यहाँ मैं महफूज रहूँगी। लेकिन चचा चची मेरे बारे में क्या सोचेंगे? शायद मैं घर से भाग गई हूँ। ऐसे ही बुरी बुरी सोचें मेरे जहन में आ रही थी। मैं खुद को शदीद बेबस महसूस कर रही थी। फिर वो मेहरबान नौजवान 3 दिन तक मेरा इलाज करता रहा, यहाँ तक कि मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। फिर तीसरे दिन मैं उससे कहने लगी कि अब मुझे घर जाना चाहिए, न जाने मेरे घर वाले कबूल करेंगे या नहीं। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल न करें तो सीधे यहाँ आ जाना। मैं हैरत से उससे देख रही थी, कुछ बोल नहीं सकी। डरी सहमी में घर आई तो चचा ने मुझे उसी रात घर से निकाल दिया। लेकिन जब मैं वापस उस जगह पर गई, मैं उसे अपनी गवाही देने के लिए अपने साथ लेकर आना चाहती थी। वहाँ पर आकर उसका नामो निशान भी नहीं था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। ना ही मुझे वो मस्जिद मिल रही थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? चलते चलते मुझे ये वीरान खंडर नुमा घर नज़र आया तो मैं यहीं पर बैठकर अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। तब मुझे वो खौफनाक वजूद दिखाई दिया जो मुझे कह रहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इतना डरावना चेहरा देखकर मेरे आवाज़ काबू में नहीं आ रहे थे। मैं खुद को तभी ज़ख्मी कर बैठी। जब मुझे होश आया तो मेरे पास एक औरत बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली स्याह थी। उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं घबरा कर उससे पूछने लगी कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तो वो कहने लगी, मैं तुम्हें घसीटते हुए अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ, वरना वो तुझे अपने साथ ले जाता। उसकी बात सुनकर मैं सख्त खौफजदा हो गई। आखिर वो कौन था जो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था? लेकिन मैं तो यहाँ किसी की तलाश में आई थी, उसी मस्जिद की तलाश में जहाँ पर वो नौजवान था जिसे मैं अपने साथ लेकर जाती थी ताकि वो चचा चची के सामने मेरी गवाही दे सके। फिर मैं उस औरत से कहने लगी कि यहाँ पर कोई करीब में मस्जिद है। उसने तिरछी निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, तुझे इस मस्जिद के बारे में कैसे मालूम हुआ? वो मस्जिद तो किसी के सामने जाहिर ही नहीं होती। उसके मुंह से अजीब व गरीब बातें सुनकर मैं हैरान थी। मैं कहने लगी, खुदा के लिए मुझे उस मस्जिद के बारे में बता दें, वहाँ पर एक नौजवान है, मुझे उससे मिलना है। ये सुनकर वो ज़ोर से हंसी और कहने लगी, ये सब तेरी नज़र का धोखा है, वहाँ कोई नौजवान नहीं है, तुझे गलत फहमी हुई है। देख, यहाँ से अभी तुझे 2 दिन तक बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुझ पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। मैं हैरान होकर कहने लगी, कैसी मुसीबत? तो वो सरगोशी में कहने लगी, कल रात अमाउस की रात है, ऐसे में वो सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। अगर तू यहाँ से बाहर निकली तो वो तुझे देख लेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई तुझे देखे, इसलिए खामोशी से इस झोंपड़ी में रहना।
میں सहमी वहाँ बैठी रही। फिर उस औरत ने अजीबो गरीब सा खाना लाकर मेरे सामने रखा जो मुझसे देखा भी नहीं गया। अब मैं अजीब सूरत हाल में फंस चुकी थी। क्या मैं 2 दिन तक उसी झोंपड़ी में पड़ी रहूंगी? यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यह सोचकर मैं परेशान थी, कोई तो हल होगा जो मैं यहाँ से निकलकर मस्जिद की तलाश में आगे जा सकूं। मैं दिल ही दिल में उस नौजवान को याद कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सोचकर कि चचा ने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया। आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेली इस दुनिया में कहाँ भटकती फिरूंगी। उन्हें मेरी बातें झूठ लग रही थी। तभी मेरी नज़र अपने पाँव पर पड़ी जो बिल्कुल ठीक हो गया था। ना वो सांप मुझे काटता और ना ही मुझे 3 दिन तक वहाँ रुकना पड़ता। तभी तो उनके इल्ज़ामात सच साबित हो गए। मैं मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन गई। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं बस यही दुआ कर रही थी। लेकिन अगली सुबह मेरी आँख खुली तो चारों तरफ उजाला फैला था और मैं उस झोंपड़ी में तन्हा लेटी थी। यहाँ ना तो वो औरत थी और ना ही कोई तीसरा शख्स। अब मैं आराम से यहाँ से जा सकती हूँ। मैं दबे पाँव यहाँ से निकली और तेज़ी से भागने लगी। लेकिन अचानक ही भागते भागते मेरी चप्पल टूट गई। सदमे से मेरा बुरा हाल था। मैं जानती थी कि उस खौफनाक जंगल में जहरीले सांप भी मौजूद हैं। मुझे उनसे भी बचना होगा, कहीं वो फिर से मेरे पाँव पर न काट लें। मैं उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक ही मेरे सामने से 2 आदमी आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर मैं खौफजदा हो गई क्योंकि उनका हुलिया बहुत अजीबोगरीब था। ऐसे लग रहा था जैसे वो झाड़ियों में कोई चीज़ तलाश करते फिर रहे हों। मैं भी वहीं दरख्त के पीछे छुप गई, लेकिन उनमें से एक आदमी की नज़र मुझ पर पड़ गई थी और दूसरे आदमी से वो कहने लगा, वहाँ देखो, मुझे एक लड़की नज़र आई है। तो दूसरा आदमी कहने लगा, पागल हो गए हो? इस खौफनाक और ख़तरनाक जंगल में कोई पागल होगा जो यहाँ आएगा? कहाँ है वो लड़की? वो दोनों मुझे तलाश करते मेरे सर पर पहुँच गए थे। मैं सहमी नज़रों से उन्हें देख रही थी। एक आदमी को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई जोगी हो। तभी दूसरा आदमी उससे कहने लगा, आमिल साहब, ये कोई आसेब नहीं बल्कि जीती जागती लड़की है। इसके पाँव से टपकता हुआ खून बता रहा है कि ये ज़ख्मी हालत में यहाँ घूम रही है। लड़की, कौन हो तुम? अब वो सामने खड़ा आदमी मुझसे पूछ रहा था, जबकि मैं उन्हें देखकर डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। दूसरा आदमी कहने लगा, कहीं ये लड़की गूंगी तो नहीं है? तो वो आमिल कहने लगा, बताओ तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा कर कहने लगी, मैं रास्ता भटक गई थी जिसकी तलाश में यहाँ आई हूँ, लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रहा। मेरे मुंह से ये अल्फाज ज़दा होते देखकर वो दोनों हैरान रह गए कि मैं बात कर सकती हूँ। तुम यहाँ इस वीरान जंगल में किसे ढूंढ रही हो? बताओ, हम शायद तुम्हारी मदद कर सकें। मैं घबराए हुए लहजे में कहने लगी, वो यहाँ पर एक मस्जिद थी जिसमें मैंने रात को पनाह ली थी। वहीं पर मुझे एक नौजवान मिला था। मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ ताकि वो मेरी गवाही दे सके मेरे घर वालों के सामने, क्योंकि उन्होंने मुझे आधी रात को इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। मैंने मासूमियत में उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर उस आमिल की आंखें चमकने लगी। वो कहने लगा, ज़रूर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र आई होगी जो आम इंसानों से पोशीदा होती है। देखो लड़की, वो चीज़ें हर किसी के सामने नहीं आती। अगर तुमने उन्हें देखा है तो ज़रूर तुम्हारे अंदर कोई ख़ास बात है। तुम मेरे साथ चलो, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो तुम्हें दिखाई दिया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात होगा, क्योंकि इस जंगल में जिन्नात का बसेरा है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं दहशतज़दा नज़रों से उन्हें देख रही थी। दूसरा आदमी कहने लगा कि मैं इस आमिल का मुरीद हूँ। हम अक्सर ही यहाँ जड़ी बूटियों की तलाश में आते हैं। तुम्हें भी मालूम होगा कि यहाँ की जड़ी बूटियाँ बहुत कारआमद होती हैं जो मुख्तलिफ़ दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। हमने आज तक यहाँ किसी लड़की या औरत को नहीं देखा। तुम नज़र आने वाली पहली लड़की हो, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। कहीं वो आसेब तुम्हारे पीछे ना आ जाए। मैं उनकी बात सुनकर डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन मैंने देखा वो दोनों आपस में सरगोशियों में कोई बात कर रहे हैं। मेरे दिल में ये खदशा था कि कहीं ये दोनों आदमी गलत ना हो, वहाँ जाकर मेरे साथ कुछ कर न लें। मैं यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसी ताकत थी जो मुझे भागने से रोक रही थी।
लग रहा था जैसे उन दोनों ने मुझ पर कोई सहर तारी कर दिया। अब वो मुझे एक अजीब व गरीब से मकान में ले गए जहाँ पर एक औरत पहले ही रह रही थी। उसने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, लो तुम भी उनका शिकार बनकर आ गई हो, अब भुगतना खुद ही। उस औरत का गुस्सा देखकर मैं हैरान थी। मैं उससे बताना चाहती थी कि मैं खुद यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि ये दोनों मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए, लेकिन वो नाराज़गी से अंदर कमरे में चली गई। जबकि सामने खड़ा वो आमिल खबीस नज़रों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, ये औरत तो पागल है, हम तो तुम्हारी मदद के ख्याल से तुम्हें साथ लेकर आए हैं, इसलिए यहाँ पर आराम से रहो। मैं कमरे में सहम कर बैठ गई। काफ़ी घंटे गुजर गए लेकिन कोई भी अंदर नहीं आया। घबरा कर मैं जैसे ही बाहर निकली तो दूसरे कमरे से मुझे उसी औरत के चीखने की आवाज़ आई जो आमिल से कहने लगी, अब तुम इस कदर कम उम्र लड़की से शादी करोगे? शर्म आनी चाहिए। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो, तुम्हें भी एक दिन अल्लाह को जवाब देना होगा। ये सुनते ही मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं समझ गई कि मैं अजीब सूरत हाल में गिरफ्तार हो गई हूँ। आमिल ही मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, शायद ज़बरदस्ती शादी, लेकिन वो तो एक बूढ़ा आदमी है। अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैं किसी को मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं पर रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लगी तो मुझे एक रोशनी चमकती दिखाई दी। जैसे ही उस तेज़ रोशनी में मैं देखने की कोशिश करने लगी, सामने खड़ा वजूद जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। मैं उसे देखकर खुश हो गई। रोते हुए कहने लगी, मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही थी, कहाँ चले गए थे तुम? वो सरगोशी में कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारी हिफाजत करना मुझ पर फ़र्ज़ है क्योंकि तुम एक मासूम लड़की हो। वो अब मुझे अपने साथ लेकर यहाँ से जा रहा था। मैं बहुत खुश थी, अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। कहाँ मैं सोचकर परेशान थी कि आमिल मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, लेकिन वो मेरी मदद करने के लिए पहुँच गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने ख़ुद को उसी मस्जिद में पाया जिसके सफ़ेद दरवाजे पर सफ़ेद फर्श मुझे सुकून दे रहा था। मैंने जैसे ही आंखें खोली वो मेरे सिरहाने बैठा था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो कोई अमल कर रहा हो। मैं हैरान होकर उससे कहने लगी कि मैं यहाँ कैसे पहुँची? तो उसने मेरे मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहने लगा, खामोश रहो, मैं तुमसे वो सहर दूर कर रहा हूँ जो उस आमिल ने तुम पर किया था, जिसकी वजह से तुम उसके साथ जाने पर मजबूर हुई। अब मैं बिल्कुल खामोश हो गई। फिर मैं अटक अटक कर उससे कहने लगी, लेकिन वो आमिल कह रहा था कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हो। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और कहने लगा, क्या हुआ अगर मैं जिन्नात हूँ तो? मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि मैंने तुम्हारी मदद ही की है, इसीलिए तुम्हें मुझसे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। फिर सोचने लगी, इंसानों से बेहतर तो ये जिन्नात है जिसने मुझे डराया नहीं और ना ही मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बल्कि मेरी मदद करके यहाँ तक ले आया। मैं उससे कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो अमिल मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है? वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि मैं एक जिन्नात हूँ, मेरे पास कई ताकतें हैं। जब वो दोनों आदमी जो बहुत ही शैतान फितरत है तुम्हें लेकर जा रहे थे, मैं तब से तुम्हारे पीछे पीछे ही था और ये बात वो अमिल अच्छी तरह से जानता था, लेकिन मुझसे और मेरी ताकत से वाकिफ़ नहीं था। इसीलिए वो धोखे से तुम्हें अपने साथ लेकर आया, लेकिन जब मैंने उसके घर से तुम्हें रोते हुए पाया तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं तुम्हें वापस मस्जिद लेकर आया। मैं अफसोस भरे लहजे में उससे कहने लगी, लेकिन मैंने उस मस्जिद को तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, आखिर ये मस्जिद मेरी नज़रों से ओझल क्यों हो गई थी? ये सुनकर वो मुस्कुरा कर कहने लगा, क्योंकि ये हर किसी के सामने नहीं आती। ये हम जिन्नात की मस्जिद है, हम रात को यहाँ इबादत करने आते हैं, मगर ये सबको दिखाई देगी तो इंसान इसके बारे में खोजने की कोशिश करेंगे और हमारी ज़ात के बारे में कोई सवाल करे, ये हमें गवारा नहीं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं रोते हुए कहने लगी कि अब मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, मैं एक ऐसी भटकी हुई लड़की हूँ जिसके पास कोई ठिकाना भी नहीं है। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम अपनी ताकत से अल्लाह को राज़ी करो। क्या मतलब? मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है। मैं हैरान होकर उससे कहने लगी तो वो जादुई अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारे पास एक ताकत है, इबादत करने की। तुम इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर सकती हो,
5 वक्त नमाज पढ़ो और उसे याद करती रहो। इस मस्जिद में तुम्हारी जान और इज्जत बिल्कुल महफूज है। मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए, कोई तुम्हें आंच भी नहीं पहुंचा सकता। अब मैं पुरसुकून थी। अब मैं मस्जिद में बैठी रहती। लेकिन 3-4 दिन गुजरे थे जब आधी रात को औरतें मेरे पास आई। उनके हाथों में एक सफ़ेद रंग का लिबास था। वो कहने लगी, ये तुम्हारे लिए हमारे शहंशाह ने भिजवाया है, इसे पहन लो। और ये लिबास निहायत ही उम्दा था, इसीलिए मैंने उसे पहन लिया। मैं खुद को उस लिबास में बहुत आरामदाह महसूस कर रही थी। ऐसा एहसास तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। यूँ कई दिन तक मैं उस मस्जिद में रही, लेकिन मेरी ज़िंदगी के हालात बहुत हद तक बदल गए और शायद मेरे अंदर का जो खालीपन और महरूमी थी वो भी। अब मैं किसी की ज़ात में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं करती थी, बस अल्लाह को याद करती और उसी की इबादत करती। अब मेरे लिए दुनिया बेकार हो चुकी थी। ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते मुझे कई दिन गुजर गए, लेकिन एक दिन आधी रात को वो मेरे पास आया और कहने लगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। न सिर्फ मैं बल्कि हमारा पूरा कबीला, क्योंकि इस जगह पर इंसानों की आबादी बढ़ने वाली है, जो हमारे लिए बहुत ख़तरा है। ये सुनकर मैं उदास हो गई। मैं उससे कहने लगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? अगर तुम जिन्नात यहाँ से चले गए तो ये मस्जिद भी गायब हो जाएगी। ये सुनकर वो कहने लगा, तुम्हें इस बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस दुनिया में कहीं भी जाओ, लोग तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा पाकीज़ा वजूद जो तुम्हारे अपनों ने तुम पर बहुतान लगाया था वो तुम खुद झूठा साबित करोगी उनके सामने, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे मुझे उन बातों पर अब भी यकीन नहीं था, लेकिन शायद अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया था। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, लेकिन समझना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद हूँ। उसकी इस बात ने मुझे खुश कर दिया। फिर उसने मुझे इंसानों की दुनिया में छोड़ा। मैंने देखा कि सब लोग मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। मेरा सफ़ेद पाकीज़ा लिबास, नूरानी चेहरा। तभी एक नौजवान मेरे पास आया। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। वो बहुत इबादत गुजार लगता था। मुझे देखकर कहने लगा, लग रहा है आप इस शहर में नई हैं, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है? मैं सर झुकाकर कहने लगी, जी हाँ, दरअसल मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली और लावारिस हूँ। रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। कि आप मुझे किसी यतीम खाने का पता बता सकते हैं? मैंने देखा। ये सुनकर उसकी आंखों में हैरत थी। उसे यकीन नहीं आया कि मैं सच में किसी यतीम खाने को तलाश करती फिर रही हूँ। शायद मेरी शख्सियत ही ऐसी हो गई थी। वो कहने लगा, आप यतीम खाने के बजाय अगर मेरे घर में रहेंगी तो मुझे खुशी होगी। मैं एक बहुत बड़े इमाम का बेटा हूँ और एक मस्जिद का कारी हाफिज़ कुरान हूँ। आप मेरी ज़ात पर भरोसा कर सकती हैं। मैं आपको किसी यतीम खाने में जाने का नहीं कह सकता, क्योंकि आप जानती हैं कि आजकल कोई भी जगह लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। उसकी बात ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। मैं सर झुकाकर कहने लगी, आपके घर वाले क्या मुझे कबूल कर लेंगे? मैं एक लावारिस लड़की हूँ। मेरी पीछे की ज़िंदगी कैसी है ये आप नहीं जानते। यह सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे आपसे कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे की पाकीज़गी और ये सफ़ेद लिबास बता रहा है कि आप एक अच्छे किरदार की मालिक हैं। बस आप मेरे साथ मेरे घर चलें। वो नौजवान बहुत इसरार कर रहा था। फिर वो मुझे अपने साथ ले गया। मैंने देखा उसके वालिदैन बड़े ही उम्दा अखलाक के मालिक थे। उन्होंने मुझे घर में रहने के लिए जगह दी थी, जबकि उस इमाम की बीवी भी बहुत अच्छी खातून थी। वो मुझे कहने लगी, क्यों बेटा, तुम जैसी प्यारी और नेक लड़की को किसने दरबदर किया? उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मैं उन्हें कैसे बताती कि जो मेरे साथ हालात व वाक़यात पेश आए हैं, इससे पहले कोई भी देखता तो यही समझता कि मैं गलत लड़की हूँ। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। अब मैं उसी घर में रहने लगी। ऐसे लग रहा था कि वो दोनों मुझे बहुत पसंद करने लगे हैं। लेकिन उस नौजवान की वजह से अब मैं उस घर में शदीद घबराहट का शिकार थी, क्योंकि वो आते जाते मुझसे खैर खैरियत पूछता। उसकी आंखों की चमक बताती थी कि वो दिल ही दिल में मुझे पसंद करता है। लेकिन अगर उसे मेरे बाजी के बारे में पता चल गया तो शायद वो मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करे। यही सोचकर मैं घबरा रही थी। फिर उस रात में बड़ी उदास थी। मैं सोच रही थी कि न जाने मेरे ऊपर लगा ये दाग कभी साफ होगा या नहीं। मैं 3 दिन घर से बाहर गुजारने वाली लड़की हूँ। लोग मेरे किरदार के बारे में शक करते होंगे। तो यूँ ही सोचते सोचते मैं गहरी नींद सो गई।
आधी रात को एक चमकती हुई रोशनी से मेरी आँख खुली। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा, ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं किसी अलग दुनिया में मौजूद हूँ। सामने खड़ा नेक जिनजात मुझे देखे जा रहा था। उसकी नज़रों में मेरे लिए बहुत एहतराम था। वो कहने लगा, क्यों उदास हो? मैं उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई। मैं उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। क्या मैं वापस चली जाऊं जहां से मैं आई थी? लोग मुझ पर उंगलियां तो नहीं उठाएंगे? वो कहने लगा, नहीं, अभी वहां जाने का वक्त नहीं है, क्योंकि वहां के हालात बहुत अजियतनाक हैं। तुम्हें जाकर तकलीफ़ होगी। यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी पुरसकून है, इसीलिए तुम्हें अपने मामलात छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे समझा रहा था और मैंने उसकी बात को मानने का फ़ैसला किया। उसे देखकर मैं अपने सामने तो गोया मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई थी। मैं दिल ही दिल में महसूस करने लगी कि उस जिन्नात की वजह से मैं खुश रहती हूँ। दूसरे दिन मैं खुशी खुशी पूरे घर में कामकाज करती फिर रही थी, क्योंकि मैंने इमाम साहब की बीवी के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। वो नौजवान भी हैरान था कि आज मेरे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है। तभी वो मुझसे पूछे बिना न रह सका। वो मुझे कहने लगा, आज आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। लगता है कि आपने बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा है। मैं उससे कहना चाह रही थी कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। वो जिन्नात जिसने मेरी हर तरह से मदद की है, वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन ये बात मैं नहीं बता सकती थी और ना ही बताने वाली थी। लेकिन एक दिन एक औरत इमाम साहब की बीवी के पास दम करवाने आई। वो अपने पोते को लेकर आई थी। मैं जो घर का कामकाज करती फिर रही थी, वो मुझे देखकर हैरान रह गई। फिर उसने इमाम साहब की बीवी से कहा, अरे ये लड़की यहाँ कैसे? उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो चची की जान पहचान वाली थी। क्या मैं अपने घर वालों से इतनी नज़दीक हूँ? मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन वो औरत जिस नज़र से मुझे देख रही थी, उसे देखकर एहसास हुआ कि ये मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाने वाली है। अब मैं घबरा रही थी। मेरे हाथ पाँव में ठंडे पसीने आने लगे। मैं खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुकी थी। ऐसे लगा कि एक बार फिर से मैं बिखर रही हूँ। मैं भागकर कमरे में छुप गई, लेकिन बाहर से उस औरत की आवाज़ आ रही थी, जो इमाम साहब की बीवी से कहने लगी, अरे ये लड़की तो बड़ी ख़राब है। किसी फैक्ट्री में काम करती थी, 3 दिन तक घर से बाहर रही तो चचा ने घर से निकाल दिया। बड़ी ही बदनाम ज़माना लड़की है। ये यहाँ कैसे पहुँच गई तुम जैसे शरीफों के घर? कहीं तुमने इसे अपनी बहू तो नहीं बना लिया? उस औरत के इल्ज़ाम सुनकर इमाम साहब की बीवी हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं आया। वो कहने लगी, तुम्हारे पास क्या सबूत है इसके किरदार का? तो वो कहने लगी, अरे इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि मैं इसके चचा के मोहल्ले में रहती थी। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था जब इसका चचा इसे घर से निकाल रहा था, क्योंकि ये 3 दिन घर से बाहर रही, किसी फैक्ट्री में काम करती थी। क्या इसने तुम्हें नहीं बताया? अब इमाम साहब की बीवी भी मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी, जबकि मेरा वजूद बिल्कुल ऐसा हो गया कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाऊं। मैं जानती थी कि जैसे ही उसका बेटा शाम को आएगा, वो मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। इससे पहले कि मेरी ज़िल्लत का ये दिन मुझे खुद अपनी आंखों से देखना पड़े, मैं पहले ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। अब मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने जो बड़ी मुश्किल से अपनी शख्सियत को एक नए मुकाम पर खड़ा किया था, फिर से मैं बिखर कर पानी की तरह ढेर हो गई। मैं चुपचाप ये घर छोड़कर चली आई, उसी वीराने में, उसी जंगल में। शायद यही सन्नाटा मेरा मुंतज़िर है। मेरे करीब ही एक नदी थी। दिल तो चाह रहा था कि नदी में डूब कर अपनी जान दे दूँ। आखिर ज़िल्लत फिर से मेरा पीछा करती हुई यहाँ पहुँच गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं चीखें मार कर रोऊं। मैं वहीं दरख्त के नीचे बैठकर घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। न जाने कब रात हो गई। रात की वीरानी और खौफनाक तारीकी ने मुझे शदीद दहशत ज़दा कर दिया। क्या ऐसी ज़िंदगी से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? फिर से कोई उबाश आदमी आएगा और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाएगा। यही सोचकर मुसलसल मैं रोई जा रही थी। तभी एक सफ़ेद रोशनी से चमकने लगी। मैं उठकर भागने ही वाली थी कि अचानक उसने मुझे आवाज़ दी, कहाँ जा रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वो जिनजात मेरे सामने था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे कहने लगी कि एक बार फिर से मैं जलील होने वाली थी। इससे पहले कि ये ज़िल्लत अमेज़ दिन आंखों से देखती, पहले ही वो घर छोड़कर आ गई हूँ।
یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا ایسی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ حافظ قرآن نوجوان تمہیں بہت پسند کرنے لگا، وہ جلد تم سے شادی کرنے والا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہنے لگی ایسا دن کبھی نہیں آتا۔ ان سب کے سامنے میری اصلیت آ گئی تھی، میں گنہگار لڑکی ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ تم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے انہیں سب سچ بتا دیا ہے۔ یہ سن کر میں حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی کہ تم نے کیسے بتایا، تم تو کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کہنے لگا میرے اندر یہ طاقت ہے، میں انسانی روپ میں ان کے سامنے ظاہر ہوا اور تمہارے لیے میں نے گواہی دی کہ تم جیسی صاف اور پاکیزہ لڑکی شاید انہیں کبھی نہ ملے، اس لیے جا کر اس لڑکی کو روک لو، اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھے، لوگ اس کے ساتھ کچھ غلط کر لیں، ورنہ اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کے سر آئے گی۔ یہ سنتے ہی وہ حیران رہ گئے کہ اس لڑکی کی گواہی ایک جنات نے دی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے ان کے سامنے اپنی اصلیت بتا دی تھی، اب وہ جلدی تمہیں لینے آئیں گے، بس اس بات کا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میں مسلسل اس کی باتوں کو سوچے جا رہی تھی۔ آدھی رات بھی نہیں گزری تھی جب مجھے 2-3 قدموں کے چلنے پھرنے کی آواز آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگی کہ ضرور یہاں پر کوئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے نقصان پہنچا دیں گے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے کسی وجود سے ٹکرا گئی۔ میں نے دیکھا یہ تو وہی حافظ قرآن نوجوان تھا جو مجھے پناہ دینے کے لیے گھر لے کر گیا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا جب سے تم گھر چھوڑ کر گئی تھی میں تب سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، شکر ہے کہ تم مل گئی۔ وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی وہ امام صاحب تھے۔ وہ کہنے لگے میرے بیٹے کی منزل آسان ہو گئی بیٹا، وہ تو تم سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا اور تم اس گھر کو چھوڑ کر اس جنگل میں آ کر رہنے لگی، آخر کیا وجہ تھی؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میری کیا مجبوری تھی۔ میرے دل کا خوف مجھے ایک پل سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ تبھی امام صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹیاں یوں سڑکوں پر بھٹکتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، آج سے تم میری بیٹی ہو، میں جلد تمہیں بہو بنا لوں گا اپنے بیٹے سے شادی کر کے، اس لیے گھر واپس چلو۔ اب میں نظریں جھکائے کھڑی تھی لیکن میری آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی میں گھر گئی تو امام صاحب کی بیوی کہنے لگی میں نے تو تمہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا، میں اتنی بے وقوف نہیں جو اس جاہل عورت کی باتوں میں آ کر تم پر الزام لگاتی، کیا تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا ہے؟ وہ مجھ سے خفا تھی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی لیکن مجھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، پھر بھی میرے سگے چچا چچی نے مجھ پر گندے الزام لگائے، انہوں نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ آپ ہی بتائیں جب اپنے ایسا کرتے ہیں تو غیر پر کیا کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے میں گھبرا کر یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ایک بار پھر سے خود کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر امام صاحب کہنے لگے آج کے بعد کوئی تمہیں ذلیل نہیں کرے گا، اس پورے محلے میں تمہاری عزت ہے، جب تم امام صاحب کی بہو بن جاؤ گی تو لوگ تم سے بات کرنے کو ترسیں گے، وہ اسے اپنی خوش نصیبی تصور کریں گے۔ شاید اب میری زندگی میں خوشیوں کے دن آنے والے تھے۔ دوسرے دن میں نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا کیونکہ یہ مجھے اسی امام صاحب کی بیوی نے پہنایا تھا جو میری ساس بننے جا رہی تھی۔ اس جمعے کو ہی میرا نکاح اس حافظ قرآن نوجوان سے ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ کہنے لگا تم میری نظروں میں بہت معتبر ہو، اگر کوئی تم پر الزام لگائے گا تب بھی میں یقین نہیں کروں گا۔ میں کہنے لگی کہ آپ کو مجھ پر اتنا اعتبار کیسے ہے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کیونکہ وہ نیک فطرت جنات ابا کے بہت پرانے جاننے والے ہیں، ابا کا ان سے رابطہ ہے، اس نے تمہارے بارے میں یہ سچ بتایا کہ تم گنہگار نہیں ہو بلکہ سانپ کے کاٹنے سے زخمی ہو گئی تھی، اس لیے تم نے 3 دن تک مسجد میں پناہ لی اور اس نیک جنات نے تمہارا علاج کیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ سچائی سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اب میری زندگی میں صرف خوشیاں تھیں۔ پھر ایک دن میں نے چچا چچی سے ملنے کا سوچا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ چچا مجھے سامنے دیکھ کر حیران تھے لیکن وہ بستر کے مریض بن چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر رونے لگے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جبکہ چچی سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگے بیٹا مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، کئی بار تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی کیونکہ ہم تم سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ جو الزام ہم نے تم پر لگایا تھا وہ سب کچھ ہماری بیٹی نے کیا تو پتہ چلا کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ تم ایسی نہیں ہو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف تھی لیکن کیا کرتی،
बस आंखों पर नफरत की पट्टी बंध गई। मैंने उनके हाथ थाम लिए और कहने लगी, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मेरे नसीब में था वो मेरे साथ हुआ। अब मुझे मेरे नसीब से बढ़कर मिल गया है। ये मेरे शौहर हैं हाफिज़ कुरान। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैं इन्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। फिर चचा चची ने मुझे ढेरों दुआएं दी। मैंने भी उनकी मदद के ख्याल से चंद पैसे उनके हाथ पर रख दिए। फिर मैं अपने शौहर के साथ वापस आ गई। उस रात मैं खिड़की में खड़ी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी जब मुझे अपने पीछे सरगोशी सुनाई दी। मैंने कहा था ना तुम्हारा नसीब बहुत बुलंदी पर ले जाएगा। देखो आज तुम कितनी खुश हो। और तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। मैंने जैसे ही पलटकर देखा वो जिनजात मेरे पीछे खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर मैं आज भी बहुत खुशी महसूस कर रही थी। मैं मुस्कुराकर उसे कहने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही तुम मेरी मदद करते और ना ही लोगों के सामने मेरी सच्चाई आती। वो कहने लगा, अगर मैं ना भी मदद करता तो तब भी तुम्हारे नसीब में ये सब लिखा हुआ मिलकर रहता, क्योंकि खुदा ने तुम्हारा नसीब अच्छा बनाया है। इंसान कभी मायूस होता है तो उसकी नाउमीदी उस वक्त खुशी में बदल जाती है जब उसे नसीब से बढ़कर मिलता है। और तुम्हें अपने नसीब से ज़्यादा मिला है। तुम्हें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं भी 2 शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए वज़ू करने चल दी, क्योंकि मुझे उस मालिक का बेशुक्रिया अदा करना था जिसने मुझे हद से ज़्यादा नवाज दिया था।